Hi kids, very good morning to all. Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of the Spagya Preschool. Today's date is 28 November 2020 and day is Friday. Hi kids, it's time for English recitation. Kids, today we will recite the rhyme Doctor Doctor from our syllabus. Okay, let's start. Doctor Doctor, come and see. Doctor, doctor, come and see. Is there something wrong with me? Cough and cold, do check me. Cough and cold, do check me. Then I have run and catch a train. Then I have run and catch a train. Kids, learn it well. Thank you. Hello kids, welcome back to your next class, that is English Oral. So take out your English book, English with Phonic, and open the page number 39. Kids, today we will learn IP ip sound, IT it sound word, IT IN in sound word. Okay, let's start. D, D, E per dip, H, E per hip, La, E per lip, Na, E per nip, Z, E per zip, Ta, E per tip, Pa, E per pip, Sa, E per sip. Okay, repeat it again. D, I per dip, H, I per hip, L, I per lip, N, I per nip, Z, I per zip, T, I per tip, P, I per pip, S, I per sip. And now IT it sound word. B, eat a bit, F, eat a fit, H, eat a hit, Sa, eat a sit, Pa, eat a pit, K, eat a kit, La, eat a lit. B, IT bit, F, IT fit, H, IT hit, S, IT sit, P, IT pit, K, IT kit, L, IT lit. And now IN, inner sound word. B, in a bin, P, in a pin, T, in a tin, V, in a win, F, in a fin. B, I, N bin, P, I, N pin, T, I, N tin, W, I, N A win, F, I, N fin. Kids, आप लोगों को फोनिक की हेल्प से आपको साउंड वर्ड रीड करने हैं. ओके, थैंक यू. Kids, welcome back to your next class, that is English written. So take out your English notebook where I have done the setting of 28 November 2020 and day is Saturday. Kids, today we will do exercise. See the picture and write the first letter. आपको पिक्चर को देखना है and recognize करते हुए उसका अल्फाबेट लेटर्स को फर्स्ट लेटर जिससे वो स्टार्ट होता है आपको यहाँ पे write the first letter. Okay, so what is this? This is A for apple. So here we will write the alphabet mama and baby A. Okay, हमको both letters write करने होंगे, capital A and small a. And next picture is C for cat. So here we will write the alphabet, first alphabet C, capital and small. C, capital C and small c. Next is K for kite. So here the first letter of mama and baby, K for kite. K. Small k. And last, this is sun. S for sun. So in front of sun, here we will write first letter of sun, S for sun. Capital S and small s. Kids, like this you have to do this exercise neat and clean in your notebook. Thank you. Hello kids, it's time for Hindi recitation.
बच्चों आज हम लोग हिंदी रेसिटेशन क्लास में नानी नानी सुनो कहानी राइम को लर्न करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। नानी नानी सुनो कहानी, नानी नानी सुनो कहानी। एक था राजा एक थी रानी, एक था राजा एक थी रानी। राजा बैठा हाथी पर, राजा बैठा हाथी पर, रानी बैठी पालकी पर, रानी बैठी पालकी पर। बादल गरजा बरसा पानी, बादल गरजा बरसा पानी। भीगा राजा बच गई रानी, भीगा राजा बच गई रानी। नानी नानी सुनो कहानी, नानी नानी सुनो कहानी। ओके किड्स, you learn it well. Thank you. Hello kids, welcome back to your next class, that is Hindi oral. So take out your Hindi book Shabd Gyan and open the page number 32. बच्चों अभी तक हम लोगों ने स्वर, व्यंजन, अक्षर पढ़े थे। अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो चलिए आज हम लोग 3 अक्षर के शब्दों से वाक्य को पढ़ना सीखते हैं। चलिए स्टार्ट। मटर मटर चक, चाखा चक। एंडिंग लाइन, एंडिंग लाइन या पूर्ण विराम, हम लोगों को इसमें 1 सेकेंड के लिए स्टॉप होना है, रुकना है। नेक्स्ट, कलश भरा भर, पूर्ण विराम। इट मीन्स हमको यहाँ पर रुक जाना है। कलश भर। रमन रमन, ठहर ठहर, पूर्ण विराम। ये बोलना नहीं है, ये हम लोगों को अगर पूर्ण विराम यहाँ पे ये स्टैंडिंग लाइन होती है तो इसका मतलब होता है कि हमको अब रुकना है। ये हमारा वाक्य खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। उधर चला चल, उधर चल। नमन करा कर, नमन कर। नरम बन, नरम बाना बन। अटक मत, बहन चला चल, बहन चल। झगड़ झगड़, माता मत। सबक पढ़ पढ़, सबक पढ़। शहद शहद, चाखा चख, शहद चख। अकड़ अकड़, माता मत, अकड़ मत। तो बच्चों हम लोगों को इसी तरीके से वाक्य को पढ़ना होगा। थैंक यू। Hello kids, welcome back to your next class, that is Hindi written. So take out your Hindi notebook where I have done the setting of 28 November 2020 and day is Saturday. बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे या पढ़ेंगे बिना मात्रा वाले शरीर के अंगों के नाम। हम लोगों को बिना मात्रा, बिना किसी मात्रा के 3 अक्षर या 4 अक्षर से रिलेटेड शब्द को लिखना है। कौन से? शरीर के अंगों के नाम। जैसे ये है नयन, तो हम लोगों को अपनी नोटबुक में आपको 2 टाइम लिखना होगा शरीर के अंगों के नाम। जैसे ना या न, नयन। फिर से हम लोग रिपीट करते हुए राइट करेंगे नोटबुक में, ना या न, नयन। ओके, अब ये क्या है? ये है कमर। ओके, तो हम लोग इसको 2 टाइम लिखेंगे, का मा रा, कमर। ओके,
बिना मात्रा लगाए हुए शरीर के अंग के नाम। का, मा, रा, कमर। ओके, नेक्स्ट है गर्दन, जो फेस से नीचे का पार्ट होता है उसको कहते हैं गर्दन। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गा, रा, द, न, गर्दन। ओके, फिर से रिपीट करते हुए लिखेंगे गा, र, द, न, गर्दन। ओके, एट लास्ट ये है चरण। चरण मीन्स पैर। ओके, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चा, रा और रा, चरण। चा, रा, रा, चरण। बच्चों, आप लोगों को इसी तरीके से इस वीडियो की हेल्प से अपनी नोटबुक में 2 टाइम शरीर के अंगों के नाम लिखने होंगे। ओके, डू इट नीट एंड क्लीन। थैंक यू। Hello kids, welcome back to your next class, that is Maths Written. So take out your Maths notebook where I have done the setting of 28 November 2020 and day is Saturday. Okay kids, today we will do draw the shapes. आज हम लोगों को क्या करना है, ये shapes मैंने आपको draw करके दिए हुए हैं, आपको same as इन shapes को draw करना है। नोट shapes के सामने इन फ्रंट ऑफ द शेप आपको ये कॉपी करते हुए ड्रॉ करना है। ओके, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये कौन सा शेप है, दिस इज राउंड एंड राउंड, सर्कल। ओके, सर्कल कैसा होता है, राउंड, जैसे कॉइन कैसा होता है, राउंड में होता है। ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ द शेप ऑफ सर्कल। ओके, लाइक दिस। ओके, आप लोग इस तरीके से सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ओके, नेक्स्ट शेप इज स्क्वायर। किड्स, स्क्वायर क्या होती है, जैसे हमारा हैंकी होती है, ये कौन सी शेप की होती है, स्क्वायर शेप की होती है। स्क्वायर के 4 आर्म होते हैं और 4 साइड इक्वल होती है, 4 साइड्स होती है एंड 4 साइड इक्वल होती है, लाइक दैट। 1 2, ओके, ये 2 आर्म हो गई एंड लाइक दिस। इसी तरीके से अप साइड एंड बॉटम साइड सेम साइड, 4 साइड इज इक्वल, चारों साइड इक्वल होती हैं, ये हो गया स्क्वायर। आपको ऐसे स्क्वायर को ड्रॉ करना होगा। ओके, नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ओके, टीवी हो गई हमारी, पेंसिल बॉक्स, ये कौन से शेप के होंगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जो 2 साइड होती हैं वो सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, और 2 साइड्स वो इक्वल होती हैं। तो जैसे मैंने, ये हो गई, इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है। ओके, ये दोनों सेम होंगी और साइड की 2 साइड्स सेम होंगी, 2 साइड सेम होंगी और दोनों साइड सेम होंगी, दोनों अलग अलग तरीके से होंगी, तो इसको कहेंगे रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल शेप। एंड देन लास्ट इज ट्राइएंगल। ट्राइएंगल में 3 आर्म होती है, 3 साइड्स होती है, 1 2 एंड 3। ओके, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। जैसे माउंटेन होता है, पिज्जा होता है, ये कौन से शेप में होता है, कट, रेक्टेंगल। पिज्जा कौन से शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में। माउंटेन होता है पहाड़, ऐसे ये इस कौन से शेप में आएगा, रेक्टेंगल। तो आप लोगों को इस तरीके से ये 2 साइड एंड ये लास्ट की तीसरा आर्म ये इक्वल करते हुए आपको इस तरीके से अपनी नोटबुक में शेप्स को ड्रॉ करना है। ओके किड्स, यू हैव टू डू इट, ड्रॉ नीट एंड क्लीन शेप्स। थैंक यू। Hi kids, welcome back to your next class, that is Maths Oral. Okay kids, today we will learn the table of 3. आज हम लोग table of 3 की टेबल को लर्न करेंगे। Okay, let's start. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15,
3 6 are 18, 3 7 are 21, 3 8 are 24, 3 9 are 27, 3 10 are 30. Okay, let's repeat it again. 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 6 are 18, 3 7 are 21, 3 8 are 24, 3 9 are 27, 3 10 are 30. Kids, you have to learn it many times. Repeat it again and again. Thank you. Hello kids, welcome back to your last class, that is GK Oral. Kids, today you have to learn some questions and their answer from the syllabus. हम लोगों को ये कुछ questions हैं, उनको हमको अपनी syllabus से learn करना होगा. Okay, let's start. Question number 1 is birds that give us egg. वो कौन सी birds है जो हमको egg देती है? Okay, birds that gives us egg, that is hen. Hen gives us egg. Okay, question number 2 is cow and buffalo gives us milk. cow and buffalo क्या देती हैं? दूध, milk देती हैं. Okay, cow and buffalo gives us milk. Question number 3 is sheep gives us wool. sheep means भेड़. भेड़ हमें क्या देती है? wool, sweat, ऊन से क्या बनता है? sweater. Okay, sheep gives us wool. Question number 4 is camel and donkey carry load. camel and donkey किस हेल्प में होते हैं? camel means ऊंट, camel means ऊंट and donkey means गधा. ये हमारी क्या हेल्प करते हैं? जो भारी बोझ होता है वो उसको ढोते हैं. ओके, camel and donkey carry loads. Okay, question number 6 is bird that live in water. वो bird जो पानी में रहती है, that is duck. duck means बतख. बतख कहाँ रहती है? water. live in water. next question is dancing bird. कौन सी bird, कौन सी चिड़िया डांस करती है? dancing bird, that is peacock. this is peacock. ये कौन है? peacock. Okay, at last question number 8 is talking bird. talking, कौन सी bird talking करती है, बात करती है? talking bird is parrot. Okay, kids, learn it well. repeat it again. Okay, birds that give us egg, hen. cow and buffalo gives us milk. sheep gives us wool. camel and donkey carry load. dog guards our home. birds that live in water, duck. dancing bird, peacock. talking bird is parrot. Kids, learn it. You have to like this. Thank you.